السلام علیکم ناظرین، 4 ٹی وی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے پیش ہیں ہیڈ لائن۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کو قوم نے کیا وداع، دہلی کے نگم بودھ گھاٹ پر آخری رسومات۔ صدر جمہوریہ، وزیر اعظم، صدر کانگریس اور دیگر قائدین کی شرکت۔ جلد ہی ہائیڈرا پولیس اسٹیشنز قائم ہوں گے، لینڈ گریبرز کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، عوام کی باز-آباد کاری پر بھی توجہ دی جائے گی۔ کمشنر ہائیڈرا کی پریس کانفرنس۔ تلنگانہ اسمبلی اجلاس کی پیر کو طلبی، ڈاکٹر منموہن سنگھ کو خراج پیش کرنے کا امکان، اعلامیہ جاری۔ اور ای فارمولا ریسنگ معاملے میں کے ٹی آر کے لیے مشکل بڑھی، ای ڈی نے جاری کی نوٹس، 7 جنوری کو پیش ہونے کی ہدایت۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپر سے رابطہ کریں۔ کیو میکس دے رہا ہے ریڈی بینکٹ ہال، 3 فلورز پر مشتمل، 5th، 6th، 7th فلور پر 6,000 کا 18,000 اسکوائر فٹ کا ریڈی میڈ بینکٹ ہال۔ آج ہی رجسٹری کرائیں اور آج سے ہی فنکشنز کی بکنگ کریں، وہ بھی بہترین پرائم لوکیشن ٹولی چوکی پر۔ منگنی، شادی، ولیمہ، برتھ ڈے پارٹیز، اینیورسری جیسی دیگر تقریبات کے لیے فلی ایئر کنڈیشن کیو میکس کوہینور بینکٹ ہال، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر، ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ۔ پلیٹینا ریزیڈینشیل کمرشل، ڈالر ہلز، الکاپور روڈ، موسا انکلیو، ایس اے کالونی، ٹولی چوکی، ایمسن ڈائمنڈ ہلز کالونی، ٹولی چوکی، ایزل ریزیڈینسی، ایس اے کالونی، ٹولی چوکی، سرین ہائٹس، گولڈن سینڈ کالونی، ٹولی چوکی، دارالامارن، ہیپی ہومز کالونی، الکاپور، دارالخیر، سوریہ نگر کالونی، ٹولی چوکی، ڈیلائٹ سوٹ beside سنا انکلیو، ٹولی چوکی، اکبر انکلیو، گولڈن سینڈ کالونی، ٹولی چوکی۔ انکمپرومائزڈ کوالٹی کنسٹرکشنز، آن ٹائم ڈیلیوری ہماری پہچان ہے۔ 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا 12 مہینے کے آسان اقساط پہ۔ کیو میکس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ آپ کا خواب اب ہے حقیقت۔ عزیز ون ماون، آپ کا نیا گھر، آپ کا نیا مستقبل۔ 3 BHK کے لگژریس ریزیڈینشیل فلیٹس وتھ سجسٹڈ انٹیریئر، وہ بھی پرائم لوکیشن ملے پلی پر، سکولز، ہاسپٹلز، شاپنگ مالز کے قریب۔ یہ گھر بنا ہے خاص آپ کے لیے، اعلیٰ معیار کی سہولتیں، فلی سیکیور گیٹڈ کمیونٹی، جہاں جم سے لے کر مدرسہ اور نماز کے لیے مخصوص جگہ، گھر پر ہونے والی تقریبات کے لیے اسپیشل بینکٹ ہال، 4 لفٹوں کی سہولت، 24/7 سیکیورٹی، اسپیشیس کار پارکنگ اور 24/7 پاور بیک اپ کی بھی سہولت۔ 40% ڈاؤن پیمنٹ، ریمیننگ 18 months ایزی انسٹالمنٹ۔ عزیز ماون ون، جہاں خوابوں کی تعبیر ہوتی ہے۔ آفس ایڈریس عزیز کنسٹرکشن beside رتندیپ سپر مارکیٹ، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ اس مہنگائی کے دور میں سونا خریدنا ہوا آسان۔ جوہری گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلیٹینم ٹولی چوکی لایا ہے گولڈ بچت اسکیم۔ شادی بیاہ اور دیگر تقریبات کے لیے اب سونا خریدیں 11 مہینے کی آسان اقساط پر، اور 12ویں مہینے میں اپنا سونا گھر لے جائیں ایوریج گولڈ ریٹ پر، بنا کوئی ایکسٹرا چارج اور 0% انٹرسٹ کے ساتھ۔ 916 ہال مارک کی جیولری، نو ویسٹیج، نو میکنگ چارجز کے ساتھ۔ اب ہوگی بچت پیسوں کی اور گھر آئے گا سونا، وہ بھی آسان اقساط پر۔ آپ کا بھروسہ، ہماری پہچان، جوہری، crafted just for you، گولڈ ڈائمنڈز اینڈ پلاٹینم، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ ارادہ آپ کا، خدمت ہماری۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ پیش کرتے ہیں خواہش مند افراد کے لیے سنہرا موقع۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز کی جانب سے عمرہ بکنگ پر 5,000 کا ڈسکاؤنٹ پائیے۔ ہر ماہ 4 گروپس مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں قریب ترین رہائش، تینوں ٹائم حیدرآبادی لذیذ کھانا، ڈائریکٹ فلائٹ، اے سی ٹرانسپورٹ کی سہولت اور 5 لیٹر زمزم۔ بکنگ تیزی سے جاری ہے۔ البخاری گلوبل ٹورز اینڈ ٹریولز پرائیویٹ لمیٹڈ، وجے نگر کالونی، کراس روڈ، حیدرآباد۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی آخری رسومات سرکاری اعزازات کے ساتھ انجام دے دی گئی ہیں۔ دلی کے نگم بودھ گھاٹ میں سابق وزیر اعظم کی چتا کو آگ لگائے جانے سے قبل سلامی دی گئی۔ اس موقع پر صدر جمہوریہ ہند دروپدی مرمو، نائب صدر جگدیپ دھنکر،
वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, भूटान के बादशाह जगमे खेसर, मरकजी वज़रा, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस लीडर्स के अलावा मुख्तलिफ जमातों के कायदीन भी मौजूद थे। बैरूनी ममालिक के सिफारतकारों ने भी आखिरी रसूमात में शिरकत की। आजहानी की दुख्तर ने चिता को आग दिखाई। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की यादगार के लिए जगह की फराहमी के सिलसिले में कांग्रेस लीडर्स का रद्द-ए-अमल सामने आया है। मीडिया से बात करते हुए इमरान प्रतापगढ़ी, शशि थरूर, चिरंजीत सिंह चुनी और राजेश ठाकुर ने कहा कि जिस शख्स ने हिंदुस्तान को बहुत कुछ दिया, उसकी यादगार के क़याम के लिए फौरी जगह मख्तस की जानी चाहिए। कांग्रेस लीडर्स की तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह को अब भारत रत्न दिए जाने का भी मुतालबा उठ रहा है। इस दौरान इत्तला मिली है कि बीजेपी हुकूमत की तरफ से साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की यादगार के लिए जगह को मंजूरी दी गई है, लेकिन अभी इस बारे में अहकाम जारी नहीं हुए हैं। इससे पहले साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की मैयत कांग्रेस हेडक्वार्टर में रखी गई। सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदूर सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर कायदीन ने मनमोहन सिंह की मैयत पर फूल रखे और उन्हें ख़िराज पेश किया। फ़लस्तीनी मंदूब की तरफ से भी साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की मैयत पर फूल डाले गए। कई बैरूनी सिफारतकारों ने भी साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को ख़िराज पेश किया। Palestine people by giving them a piece of land to establish Palestine embassy in Delhi, and he is also given support to build this embassy, and we are also proud to announce that he and the President Abbas together inaugurate our official embassy camps in Delhi September 2012. So we really appreciate his support to Palestine, and we are remembering together his contribution in India, in politicians and in economists, and we are today stand with Indian people from different parties, with Indian government, with Indian Congress Party. कमिश्नर हाइड्रा एवी रंगनाथ ने कहा है कि जल्द ही हाइड्रा पुलिस स्टेशन कायम किए जाएंगे। लैंड ग्रैबर्स और जबरन काबिजीन के खिलाफ क्रैकडाउन किया जाएगा। हाइड्रा की रिपोर्ट पेश करते हुए एवी रंगनाथ ने बताया कि आने वाले 4 से 5 महीनों के दौरान तकरीबन 1000 झीलों की FTL हुदूद को मुकम्मल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में तकनीकी डाटा को भी जमा कर लिया गया है। हाइड्रा कमिश्नर ने कहा कि गैर मुसल्लमा ढांचों की इन्हदामी कार्रवाई के अलावा हाइड्रा अवाम की बाज़ाबातकारी के लिए भी इक़दामात करेगा। उनका यह भी कहना था कि उस्मान सागर और हिमायत सागर पीने के पानी के ज़खायर हैं। हिमायत सागर के FTL के लिए भी इक़दामात किए जा रहे हैं। एवी रंगनाथ ने यह भी कहा कि हाइड्रा की तरफ से जो लोग गैर मजाज तामीरात पर किराए से मुक़ीम हैं, उन्हें भी नोटिसें जारी की जाएंगी। कमिश्नर हाइड्रा ने शहर में आर्जी शेड्स में क़याम करने वालों को मोहतात रहने का मशवरा दिया। उन्होंने ये भी बताया कि FTL और बफर जोन डाटा जमा किया जा चुका है। जल्द ही इस सिलसिले में एक मोबाइल ऐप का आगाज किया जाएगा। एवी रंगनाथ ने कहा कि हाइड्रा को लेकर मनफी और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, जबकि मुल्क की दूसरी रियासतों में हाइड्रा के तर्ज पर इक़दामात किए जा रहे हैं। हाइड्रा अवाम के मफादात और वसाइल की तहफ़्फ़ुज़ के पाबंद है। उन्होंने कहा कि हाइड्रा ने कई अच्छे काम किए हैं। रंगनाथ ने कहा कि हाइड्रा की इन्हदामी कार्रवाइयाँ रुकी नहीं हैं, बल्कि वक्फा हुआ है। उन्होंने इंकशाफ किया कि हाइड्रा के तहत 15 टीमें दस्तयाब हैं। అండ్ అట్లనే ఈ షెడ్స్ ఇట్లాంటి చాలా కూడా FTL ఏరియాస్లో వాటిల్లో వస్తుంటాయి షెడ్స్, లేకపోతే ఇట్లాంటి ఏమన్నా కానీ డౌట్ పడాలి మీరు ఎవరైనా కనుక అక్కడ పర్మిషన్స్ రాకుండా షెడ్స్ లేకపోతే అక్కడ ఏదో జస్ట్ ఈ నర్సరీలు ఇట్లాంటివి వస్తున్నాయంట జనరల్గా, అటువంటి వాటిల్లో అక్కడ వాళ్ళ పర్మిషన్స్ రావట్లేదని అర్థం చేసుకోవాలి। సో అట్లాంటి వాటిల్లో మీరు కిరాయికి తీసుకోవటం లేకపోతే ఇట్లా తీసుకునేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా వ్యవహరించాలి। ఎందుకంటే రేపు మీరు డిస్టర్బ్ అయ్యే పరిస్థితి కూడా ఉండొచ్చు। మీరు నోటీస్ ఇచ్చి మిమ్మల్ని వెకేట్ చేయమనో లేకపోతే వెకేషన్ నోటీస్ అని చెప్పేసి డిమాలిషన్ నోటీస్ ఇచ్చినప్పుడు మీ బిజినెస్ డిస్టర్బ్ అయ్యే పరిస్థితి లేకుండా ముందుగానే మీరు అప్రమత్తంగా ఉండాలి। ఇట్లాంటి షెడ్స్, అనాథరైజ్ షెడ్స్ దాని దగ్గర మీరు తీసుకునేటప్పుడు కూడా జాగ్రత్తగా ఆలోచించి అది రేపు, ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా కానీ కూడా అది డేంజర్ అనేటటువంటి పరిస్థితులు కూడా తెలుసుకోవాలి। అండ్ అట్లానే ఈ పబ్లిక్ మెయిన్గా రెసిడెన్షియల్ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్స్ వాళ్ళ నుంచి వచ్చేటటువంటి దాని గురించి వాళ్ళు ఇచ్చే కంప్లైంట్స్కి మేము ప్రాధాన్యత ఇస్తున్నాము। ఎస్పెషలీ ఆక్యుపేషన్ ఆఫ్ పార్క్స్ ఎవరైనా ఆక్రమించుకున్నట్టు కానీ, లేకపోతే ఓపెన్ స్పేసెస్, లేకపోతే రోడ్స్ మీద వచ్చేటటువంటిది అనాథరైజ్ కన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా, అంటే పబ్లిక్ నుంచి వచ్చే కంప్లైంట్కి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ముందు వాటిని అడ్రస్ చేస్తున్నాం। ఇది ఇప్పుడు హైడ్రా యాప్ కూడా జరుగుతుందమ్మా, అది కూడా అయితే దీనికి అన్నిటికీ బేసిక్ ఏంటంటే ఫస్ట్ FTL అండ్ ఇది చేయాలన్నమాట,
మేము అది ఫాల్టీ ప్రాసెస్ చేస్తే కనుక రేపు అది కాకుండా మేము అందుకోసం ఇప్పటిదాకా అంతా డేటా అంతా కూడా దానికోసం వీఆర్ గ్యాదరింగ్ ద డేటా. ఈ డేటా అంతా అవ్వగానే మనకి నెక్స్ట్ అది FTL లో పెట్టగానే యాప్లోకి వస్తే కనుక ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు చూసారు. యాప్ తీసుకురావడం పెద్ద పని కాదు, యాప్ ఏమో 6 రోజులు తయారు చేయాలి, బట్ యాప్కి కావాల్సిన ఇన్ఫర్మేషన్ని తయారు చేస్తున్నాం మేము. అది తీసుకురావడానికి చాలా కసరత్తు జరుగుతుంది అన్నమాట. वजीर ज़राअत टी नागेश्वर राव ने कहा कि हुकूमत का मकसद वाज़ेह है कि सिर्फ ज़राअत करने वाले किसानों को रईतु भरोसा दिया जाएगा। वजीर मौसूफ ने कहा कि रिमोट सेंसिंग के ज़रिए ज़रई ज़मीन का अहाता किया जा सकता है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर टी नागेश्वर राव ने कहा कि सिर्फ उन किसानों को रईतु बंधु की रकम दी जा रही है जो ज़राअत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ओहदेदार किसानों के नाम दर्ज कर रहे हैं। स्कीम की अमलावरी को शफाफ बनाने के लिए सैटेलाइट डाटा को देही सतह पर सर्वे किया जाएगा। इस इजलास में कंपनियों ने गुज़िश्ता में किए गए सर्वे के नमूने को पेश किया। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत की तरफ से टेक्निकल कमेटी इसका जायज़ा लेगी और काबीनी ज़ैली कमेटी की मंजूरी दी जाएगी। इस इजलास में महकमे ज़राअत के सेक्रेटरी के अलावा मुख्तलिफ कंपनियों के नुमाइंदे मौजूद थे। तेलंगाना कानून साज असम्बली का इजलास पीर 30 दिसंबर को दिन के 10 बजे तलब किया गया है। मुकर्रना सेक्रेटरी डॉक्टर वी नरसिम्हाचार्युलु की जानिब से इस सिलसिले में एक एलामिया जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि स्पीकर ने जारिया असम्बली के चौथे सेशन का दूसरा इजलास तलब किया है। असम्बली के मानसून इजलास का हफ्ता 21 दिसंबर को गैर मुअय्यना मुलतवी हुआ था, ताहम गवर्नर ने इस इजलास के हतमी इख्तिताम का ऐलान जारी नहीं किया। इसीलिए इसी तसलसल को मलहूज रखने स्पीकर ने यह इजलास तलब किया। तमाम अरकान असम्बली को खुसूसी पैगाम भेजते हुए असम्बली इजलास की तलबी से वाकिफ करवाया गया। इसके अलावा मीडिया के नुमाइंदों, सरकारी ओहदेदारों और दीगर खिदमात अंजाम देने वालों से कहा गया है कि सरमाई इजलास के लिए जो पासेस थे वही इस इजलास के लिए कबूल किए जाएंगे। वाज़ेह है कि मीडिया के पास की मियाद 31 अगस्त को ख़त्म हो गई थी, ताहम उन्हें इन्हीं पासेस को ही सरमाई इजलास और अब पीर को तलब किए जाने वाले इजलास के लिए कारामद करार दिया गया। इम्कान है कि साबिक़ वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को क़िराज अक़ीदत पेश करने ये इजलास तलब किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि अरकान के मुबाहिस के बाद आंजहानी क़ायद के लिए करारदाद ताज़ियत मंजूर की जाएगी। कांग्रेस मुकर्रना पार्टी के गोशे की जानिब से ये तजवीज़ दी जा रही है कि साबिक़ वज़ीर आज़म की ताज़ियत के बाद डॉक्टर अम्बेडकर की तौहीन के मौजू पर भी बहस के लिए वक्त दिया जाए। ताहम इस सिलसिले में स्पीकर क्या फ़ैसला लेंगे ये हुकूमत पर मुनहसिर है। वज़ीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने साबिक़ वज़ीर पी जनार्दन रेड्डी की बरसी के मौके पर उनकी तस्वीर पर फूल डालकर क़िराज पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने हैदराबाद में उनके क़यामगाह पर क़िराज पेश करने के बाद कहा कि आंजहानी गरीब आवाम के हक़ में काम करने वाले क़ायद थे। 1994 से 1999 तक उन्होंने CLP लीडर के तौर पर खिदमात अंजाम दी थीं। BRS पार्टी के साबिक़ वज़ीर व रुकन असम्बली हरीश राव ने बताया कि असम्बली में हुकूमत ने कहा था कि मेस चार्जेस का बिल ज़ैर इल्तिवा नहीं है। उन्होंने सिद्दीपेट में ब्रिज स्कूल के तलबा में स्वेटर और बेडशीट्स तकसीम प्रोग्राम में शिरकत की। इस मौके पर हरीश राव ने कहा कि गुज़िश्ता 4 माह से मेस चार्जेस अदा नहीं किए गए। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के मुताबिक ग्रीन चैनल के ज़रिए बिल ज़ैर इल्तिवा नहीं रखे जाएंगे। रेवंत रेड्डी के ऐलानात तो हो रहे हैं लेकिन अमलावरी नहीं हो रही है। ये चीफ मिनिस्टर सिर्फ बातों के हैं, काम कुछ नहीं करते। असम्बली में जो ऐलान होता है इस पर अमलावरी ना होना बदकिस्मती है। हुकूमत ने 6 गारंटियों पर अमल नहीं किया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की बातों पर ओहदेदार अमल नहीं कर रहे हैं या फिर वज़ीर आला सिर्फ ओहदेदारों को बताने के लिए बात कर रहे हैं। ओहदेदारों को वज़ीर आला का कोई खौफ नहीं है। उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम हॉस्टल्स में फ़ौरन मेस चार्जेस जारी किए जाएं। ఇవాళ కాస్మెటిక్ ఛార్జెస్ ప్రభుత్వం 7వ తరగతి దాకా 150 రూపాయలు చేసింది. మరి ఈ పిల్లలకు ఈ రోజుకు 100 రూపాయలే వస్తుంది. ఈ పిల్లల కాస్మెటిక్ ఛార్జెస్ కూడా 150 రూపాయలకు పెంచాలి. 8th క్లాస్ వాళ్ళకైతే 200 ఇవ్వాలి. ఇక్కడ 8th క్లాస్ పిల్లలకు 100 రూపాయలే వస్తుంది. దాన్ని కూడా 200 రూపాయలకు పెంచి మేము ఈ కాస్మెటిక్ ఛార్జెస్ కూడా 4 నెలల నుంచి పెండింగ్ లో ఉన్నాయి. వాళ్ళకి తక్షణమే అందించాలని చెప్పి కూడా మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. ఇక్కడ పిల్లలకి హెయిర్ కటింగ్ చేసుకోవాలన్నా ఇంకా కొబ్బరి నూనె పెట్టుకోవాలన్నా
ఆ కాస్మెటిక్ ఛార్జెస్ అవసరం కాదు. తల్లిదండ్రులు లేని పిల్లలు వీళ్ళ పట్ల ఇంకా ప్రభుత్వం మరింత బాధ్యతగా ఉండాలి కానీ ప్రభుత్వ తీరు బాధ్యత రహితంగా ఉంది. शहर व रियासत में उर्दू मीडियम सरकारी स्कूल्स के तलबा व तालिबात के तालीमी मेयार को बेहतर बनाने मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तहत मजलिस चैरिटेबल एजुकेशनल एंड रिलीफ ट्रस्ट के जरिए 9,92,573 रुपये की इमदाद फराहम की गई और 3,47,665 तलबा व तालिबात ने इससे इस्तेफादा किया. 2005 में उस वक्त के सदर मजलिस सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी ने इस तालीमी इमदाद का आगाज़ किया था. हफ्ते को दारुस्सलाम में सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने SSC इम्तहानात देने वाले तलबा व तालिबात में ऑल इन वन गाइड्स की तकसीम के मौके पर ये बात बताई. उन्होंने उर्दू मीडियम तलबा से कहा कि वो दिल लगाकर तालीम हासिल करें. मजलिस उनकी हौसला अफजाई कर रही है. उन्हें तालीमी किट्स फराहम किए जा रहे हैं. SSC इम्तहानात में बैठने वाले तलबा व तालिबात को इम्तहानी फ़ीस दी जा रही है और तालीमी माहिरीन के ज़रिए मुदव्विन करदा ऑल इन वन गाइड्स मुफ्त में सरबराह की जा रही है. उन्होंने 10वीं जमात के बाद आला तालीम के हसूल की तलबा को तरगीब दी. अब तक 1,22,000 ऑल इन वन गाइड्स तकसीम किए गए. सदर मजलिस ने बताया कि जारिया तालीमी साल 14,000 तलबा में तालीमी किट्स फराहम किए गए और 1,459 SSC तलबा को इम्तिहानी फ़ीस 1,82,375 रुपये अदा किए गए. ऑल इन वन SSC के तलबा और तालिबात को दिया जा रहा है. अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 8,000 तलबा और तालिबात को ऑल इन वन दिया जाएगा. इसके शहर इस्लामाबाद के 2,000 तलबा और तालिबात जो गवर्नमेंट उर्दू मीडियम मदारिस में उनको दिया जाएगा और बाकी 6,000 तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में इसकी तकसीम अमल में लाई जाएगी. तो मैं शुक्रगुजार हूँ तमाम हजरात का जो इस बस में अपना दिया देते हैं और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जो तलबा और तालिबात को ये ऑल इन वन मिल रहा है वो इसका सही इस्तेमाल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला वो अच्छे नंबरात के साथ SSC के इम्तिहान में इंशाअल्लाह अल्लाह उनको कामयाबी से इम्तिहान करेगा. ये हमारी दुआ भी है, हमारी तमन्ना भी है. मकसद ये ऑल इन वन गाइड और स्कूल बैग का जो सारा फंक्शन होता है इसका एक ही मकसद है कि गवर्नमेंट के उर्दू स्कूल्स में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात को तालीम की तरफ राग़िब किया जाए. मुसलमानों में जो ड्रॉप आउट रेट है उसको कम किया जाए और हमारी ख़ास कोशिश यही है कि हमारी बेटियां अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकें ताकि वो अपनी ज़िंदगी के ख्वाबों को पूरा कर सकें. और इसीलिए हम देख रहे हैं कि कई उर्दू स्कूल्स में पढ़ने वाले तलबा और तालिबात आगे जाकर इंशाअल्लाह इंटर में भी वो BPC और MPC लेकर नीट में भी क्वालिफाई होते हैं, EAMCET में भी क्वालिफाई होते हैं. तो ये कोशिश मरूम कायद सारा रमीना करने में हमारे अपनी ज़िंदगी में शुरू की थी. अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसको कामयाबी के साथ आगे लेकर बढ़ रहे हैं. तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि आप इस ऑल इन वन गाइड का सही इस्तेमाल करिए और अच्छे नंबरात से SSC में कामयाबी हासिल करने के बाद आप इंटर में अपना एडमिशन लीजिए ताकि आप आगे बढ़ सकें, आप मुल्क को मजबूत कर सकें और मुसलमानों को मजबूत अदा कर सकें. तेलंगाना के साबिक वजीर और BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में 7 जनवरी को हाजिर होने की हिदायत दी है. तफसीलात के मुताबिक फरवरी 2023 में हैदराबाद में फार्मूला ई रेस मामले में मुबैना माली बेकायदियों के सिलसिले में ये नोटिस जारी की गई है. दूसरी तरफ तेलंगाना के इंसदाद रिश्वत सितानी के महकमे ने भी KTR के खिलाफ इस मामले में FIR दर्ज की है. ताहम तेलंगाना हाई कोर्ट ने KTR को इस मामले में गिरफ्तारी से इस्तिस्ना के लिए 31 दिसंबर तक का वक्त दिया है. 5वीं कौमी कॉन्फो डी चैंपियनशिप 2024 में अंडर 19 मुकाबले में करीमनगर के रहमान खान ने सोने का तमगा हासिल किया है. उन्होंने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की. सदर मजलिस ने उनको मुबारकबाद पेश की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया. इस मौके पर करीमनगर के मजलिस के सदर गुलाम हुसैन अहमद भी मौजूद थे.
सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर रुकन कानून साज कौंसिल मिर्जा रहमत बेग ने जमीयतुल कुरैश हैदराबाद के अहदेदारों के हमरा कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा श्रीधर बाबू IPS से मुलाकात की और भुवनगीर के करीब यादगिर गुट्टा पुलिस की जानिब से नामनेहाद गौ रक्षकों की जानिब से जब्त किए गए बड़े जानवरों को फौरी उनके मालिकीन के हवाले करने का मुतालबा किया। रुकन कौंसिल ने बताया कि बड़े जानवरों में सिर्फ भैंस ही नहीं है, उन्हें कानूनी तौर पर कुरैश बरादरी के ताजरीन ने जिले बाजार से खरीदा है। नाम नेहाद गौरक्षकों ने गाय के शोबे में गाड़ी को रोका और पुलिस स्टेशन ले गए। जबकि गाड़ी में भैंसें थीं, तब उन्होंने जानवरों से इज़ारसानी के कानून के तहत केस बुक करने को कहा। पुलिस उनकी बात पर जानवरों को बल्दिया के गौशाला मुंतकिल करने लगी। सदर मजलिस को जब इस बात की इत्तला दी गई तो उन्होंने कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा के अलावा मुतालिका DCP से बात की और मिर्जा रहमत बेग को रवाना किया। कमिश्नर श्रीधर बाबू ने इस नुमाइंदगी पर जानवरों को मालिकीन के हवाले करने का तयक़ुन दिया। रुकन कौंसिल ने कमिश्नर से कहा कि वो शहर के दाखिले के इलाकों में नामनेहाद गौरक्षकों की सरगर्मियों का तदारुक करें और मुकामी पुलिस को भी ज़रूरी हिदायतें जारी करें। इस मौके पर जमीयतुल कुरैश के सदर अतीक कुरैशी, जनरल सेक्रेटरी मंसूर कुरैशी और दीगर मौजूद थे। साउथ जोन टास्क फोर्स और हुसैनी आलम पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई में एक जुवेनाइल को गिरफ्तार किया गया है। तफसीलात के मुताबिक जुवेनाइल लड़का अपने तय्युशात को पूरा करने के लिए चोरी का मंसूबा बनाया और हुसैनी आलम के हदूद में मुख्फल मकान में कफल शिकनी के जरिए तलाई और चांदी के जेवरात का सरका किया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जुवेनाइल को गिरफ्तार किया और उसके कब्जे से 50 ग्राम सोने और चांदी के जेवरात, 6,200 रुपए की नकद रकम, मोबाइल फोन और दीगर सामान जब्त किया है। सिकंदराबाद रेलवे पुलिस ने रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के ताउन से बैन रियासती गांजा स्मगलिंग रैकेट को बेनकाब किया। 2 मुलजिमीन को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म से गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 10 किलो से जायद सूखा गांजा, जिसकी मालियत 2,53,000 से जायद बताई जाती है, जब्त किया। इसके अलावा उनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन और रेलवे के टिकट्स भी जब्त किए गए। ये सूखा गांजा उड़ीसा से महाराष्ट्र के शहर कल्याण को ले जाने वाले थे। 27 दिसंबर की दोपहर बॉम्बे जाने वाली LTT एक्सप्रेस के जनरल कोच में सवार थे। मुश्तबा हालत में देखकर उनकी तलाशी ली गई तो उनके कब्जे से यह गांजा बरामद हुआ। गांजा स्मगलर करने वाले अरुण कुमार और दीपक कुमार, इन दोनों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से बताया जाता है, जबकि उनका साथी मोहित जो मफरूर बताया जाता है। मल्टी जोन IG P सत्यनारायणा IPS ने आज जिले SP ऑफिस संगारेड्डी में जिला SP चेनोरी रूपेश के हमरा मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा कि जिले संगारेड्डी के हेडक्वार्टर पर आर्मी रिजर्व डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ब्रांच एडमिनिस्ट्रेटिव का इंस्पेक्शन किया गया। यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेनेंस में पुलिस स्टाफ, वेलफेयर, डिसिप्लिन और दीगर मामलात में बिल्कुल साफ और शफाफ रिकॉर्ड हैं और बाज़ इलाकों में रिकॉर्ड को बेहतर बनाने की ज़रूरत है। साइबराबाद, हैदराबाद, रचाकुंडा के अलावा पटनचेरू से जहीराबाद तक रैपिडो ऑर्गेनाइजेशन सबर्बन डेवलपमेंट रहने की वजह क्राइम बढ़ रहा है। इसलिए स्पेशल फोर्स रखने के लिए जिला SP, DSPs और CI वगैरह को हिदायत दी गई। रात देर गए ढाबे खुले रहने की वजह से क्राइम में इजाफा होने के इम्कानात हैं। इसलिए पुलिस की जानिब से दी गई हिदायत के मुताबिक वक्त की पाबंदी करते हुए वक्त पर बंद करना और बंद करते वक्त उन पर कड़ी नज़र रखी जाए ताकि महाराष्ट्र, कर्नाटक, नांदेड़, नॉर्थ इंडिया कनेक्शन से दूसरे क्राइम टीमें यहां पर आकर क्राइम न कर सकें। इसीलिए पेट्रोलिंग में इजाफा करते हुए हाईवे पर पूरी जिम्मेदारी के साथ रेस्टोरेंट और ढाबों को बंद किया जाए। उन्होंने कहा कि 4 चीज़ों पर खास तवज्जो दी जाए: गांजा, PDS राइस, ऑर्गेनाइजिंग गैम्बलिंग और रेती, उनमें मुलविस अफराद को बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। गांजा और रेती के मामलात में मुलविस चंद अफराद पर सख्त कार्रवाई की गई है। इसके अलावा रोडी इल्ज़ाम ग्रैंड ग्लैबर्स पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हाल ही में 430 तालीम याफ्ता काबिल पुलिस कांस्टेबलों का तकर्रुर किया गया, जिनमें 150 पुलिस खवातीन की खिदमत भी हासिल हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि नए साल के मौके पर रेस्टोरेंट्स, ढाबों और शराब की दुकानात वक्त के मुताबिक पाबंदी रहेगी और ड्रंक एंड ड्राइव की चेकिंग में इजाफा किया जाएगा। उन्होंने नौजवानों से कहा कि नए साल की खुशी अच्छी तरह मनाएं, लेकिन नशे की हालत में तेज रफ्तार गाड़ी चलाते हुए
अपने ऊपर नए साल के तोहफे के तौर पर केस वगैरह दर्ज ना करवाएं ताकि नए साल की खुशी में खलल ना हो। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। अगर आप कारोबार करना चाहते हैं तो क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स से राब्ता करें। क्यूमैक्स दे रहा है रेडी बैंकेट हॉल, 3 फ्लोर्स पर मुश्तमिल। 5th, 6th, 7th फ्लोर पर 6,000 का 18,000 स्क्वायर फीट का रेडीमेड बैंकेट हॉल। आज ही रजिस्ट्री कराएं और आज से ही फंक्शंस की बुकिंग करें, वो भी बेहतरीन प्राइम लोकेशन टोली चौकी पर। मंगनी, शादी, वलीमा, बर्थडे पार्टीज, एनिवर्सरी जैसी दीगर तकरीबात के लिए फुल्ली एयर कंडीशन क्यूमैक्स कोहिनूर बैंकेट हॉल, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स, अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी, टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी, एसए कॉलोनी, टोली चौकी, सरीन हाइट्स, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी, दारुल अमान, हैप्पी होम्स कॉलोनी, अलकापुर, दारुल खैर, सूर्यनगर कॉलोनी, टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव, टोली चौकी, अकबर एनक्लेव, गोल्डन सैंड कॉलोनी, टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। इस महंगाई के दौर में सोना खरीदना हुआ आसान। जौहरी गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम टोली चौकी लाया है गोल्ड बचत स्कीम। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए अब सोना खरीदें 11 महीने की आसान अक़सात पर और 12वें महीने में अपना सोना घर ले जाएं एवरेज गोल्ड रेट पर, बिना कोई एक्स्ट्रा चार्ज और 0% इंटरेस्ट के साथ। 916 हॉलमार्क की ज्वेलरी, नो वेस्टेज, नो मेकिंग चार्जेस के साथ। अब होगी बचत पैसों की और घर आएगा सोना, वो भी आसान अक़सात पर। आपका भरोसा, हमारी पहचान। जौहरी, क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू। गोल्ड डायमंड्स एंड प्लैटिनम, टोली चौकी, हैदराबाद। इरादा आपका, खिदमत हमारी। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड पेश करते हैं ख्वाहिशमंद अफराद के लिए सुनहरा मौका। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स की जानिब से उम्रा बुकिंग पर 5,000 का डिस्काउंट पाइए। हर माह 4 ग्रुप्स मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा में करीब तरीन रिहाइश, तीनों टाइम हैदराबादी लजीज खाना, डायरेक्ट फ्लाइट, AC ट्रांसपोर्ट की सहूलत और 5 लीटर ज़मज़म। बुकिंग तेजी से जारी है। अल बुखारी ग्लोबल टूर्स एंड ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, विजयनगर कॉलोनी, क्रॉस रोड, हैदराबाद। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को कौम ने किया विदा। दिल्ली के निगमबोध घाट पर आखिरी रसूमात। सदर जमहूरिया, वज़ीर आज़म, सदर कांग्रेस और दीगर कायदीन की शिरकत। जल्द ही हाइड्रा पुलिस स्टेशन कायम होंगे। लैंड ग्रैबर्स के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। अवाम की बाज़ाबादकारी पर भी तवज्जो दी जाएगी। कमिश्नर हाइड्रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तेलंगाना असेंबली इजलास की पीर को तलबी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज पेश करने का इम्कान, एलामिया जारी। और ई फार्मूला रेसिंग मामले में KTR के लिए मुश्किल बढ़ी। ईडी ने जारी की नोटिस, 7 जनवरी को पेश होने की हिदायत। और नाज़रीन के साथ 4TV खबरनामे का यही इख्तिताम होना चाहता है। मुझे मोहम्मद हसामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।